Going to learn in this class is where to use the modals will and would. Are you able to see my screen? नहीं मैं अभी तो नहीं. 1 second, I'll just show you. Is my screen visible now, Naya? हाँ जी. So the very first use of will is it is used to talk about future tense. Okay. And how do we express the sentences in future tense? I can say I'll always take care of you. I told you yesterday, modals are used to express the mood or attitude of the speaker, right? I can use modals effectively to express various moods or attitudes like promise, willingness, command, compromise, request, order, even threat, anything. Okay? हाँ जी. Then I can say will see you tomorrow. That what am I doing here? I'm expressing my willingness to do something. Okay, I can say perhaps dad will lend me the car. It is a possibility also and willingness also. I'm just expecting my dad to do this. I am hoping it would happen. Are you getting what I'm saying, Naya? हाँ जी. Again, John will be in his office at this time. I am predicting something in the present कि अभी इस वक्त ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा. This is my prediction in the present time. Okay, I can say will be late, will have to take the train. Again, it's a prediction for future. Prediction could be for the present time, it could be for future as well. हाँ जी. Yeah. Then would. As you know, the very first use of would is it is a past of will. It is a past of will. I can say the same sentence. He told me he would always take care of me. In the past, he told me that he would always take care of me. So that becomes a promise which was made in the past. Okay? They said they would see me tomorrow. Past. हाँ जी. Yeah? हाँ जी. John thought that perhaps dad would lend him the car. The same sentences, you can see the comparison very clearly, Naya. The same sentences I'm converting into the past. John जी. thought that perhaps dad would lend him the car. In the past, he had thought this. Again, we thought that John would be in his office at that time. This time becomes that time when you're talking about past. Again, I thought we would be late, so we would have to take the train. Now, अभी इसमें देखिए सामने हमने क्या किया सेंटेंस में इट वॉज द प्रोडिक्शन इन फ्यूचर वी विल बी लेट विल हैव टू टेक द ट्रेन. अभी आप ये क्या कर रहे हो यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रोडिक्शन अबाउट सेम पास्ट प्रोडिक्शन अबाउट फ्यूचर कि आपने ऐसा सोचा था कि आप लेट हो जाओगे तो आपको ट्रेन लेना पड़ेगा. यू जी. गेटिंग नया. हाँ जी. I hope you are very, very clear with the first use of will and would. हाँ जी. Coming to the next. What is the next use of will? It is used to talk about conditionals. Conditionals as in real situations. अब इसका मतलब क्या है आपको पता है इंग्लिश में कितने कंडीशनल्स होते हैं. विल को हम कब यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल में टू से व्हाट वी थिंक विल हैपन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. हमें जो लगता है प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा उसकी बात करने के लिए फर्स्ट कंडीशनल में हम विल को यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला आई विल गिव हर अ कॉल इफ आई कैन फाइंड हर नंबर. कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे द कंडीशन इज if you find her number then you will give her a call. जी. You getting what I'm saying? So that's a real situation. That's something practical. Okay. You won't get it unless you have a ticket. कंडीशन क्या है कि टिकट मिलना पड़ेगा. जी. तब तक नहीं मिलेगा ये जब तक तुमको टिकट तुम्हारे पास टिकट नहीं है. अगेन कंडीशनल. वांट इज नथिंग बट विल नॉट. जी. अगेन अगर कल बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लाऊंगी. इफ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माय अम्ब्रेला. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जी.
If Jared stops playing all the time, his grades will improve. In सब में क्या हो रहा है? We are using first conditionals to express, to talk about what we think will happen either in the present time or in the future time. Okay. Would में क्या है? Conditionals हैं, लेकिन इसमें जितने भी situations हैं सब imaginary situations हैं, right? It's just जी like making some hypothesis. Like अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती. If I had the money, I would buy a new car. ना पैसा है ना कार होगी. जी Imaginary. It's all imaginary situation. What if he lost his job? What would happen then? You are just imagining. अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ओके So इन सब में will नहीं आएगा, इन सब में would आएगा, because these are all conditionals in the imaginary situations. If he got a new job, he would probably make more money. अगर उस आप सिर्फ imagine कर रहे हो, अगर उसको नई job मिल गई तो शायद उसको ज़्यादा पैसा वो कमा पाएगा. Second तो conditional है. मैम इमेजिनरी सिचुएशन चाहे फ्यूचर मतलब फ्यूचर के लिए ही है या प्रेजेंट के लिए है, हमें ये ऐसे ही यूज करना है इसमें. हाँ. It could be in the present, it could be in the future, but the situation has to be an imaginary one. जी ओके मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया में उड़ के चली जाती. If I had wings, I would fly all over the world. ओके If I had my way, I would have blasted him. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे झाड़ देती. ओके. समझ में आ रहा है आपको? तो तो इसमें मैम इसमें मतलब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले में हैट लगाना और दूसरे वाले में वुड लगाना है. अगर इमेजिनरी है, अगर आप इसमें नॉर्मली क्या होता है, सिचुएशंस कौन से होते हैं जहां पे कोई विशफुल थिंकिंग होती है या फिर कोई रिग्रेट या रिपेंट की बात होती है. विशफुल थिंकिंग कैसे? मैंने कोई बंगलो देखा और मैं सोच रही हूँ अगर ये बंगलो मेरा होता ना तो मैं इसको कितना अच्छा सजा देती, राइट? तो इसमें हम क्या लगाते हैं? लेट मी जस्ट शो यू. आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड. ओके, जस्ट 1 second. 1 second. You can see my board over here. जी मैंने कोई बंगलो देखा और मेरे मन में इच्छा हुई कि अगर ये बंगलो मेरा होता तो मैं इसको कितना अच्छा सजा देती. नॉर्मली हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं? इफ दिस बंगलो वॉज माइन. लेकिन ये गलत सेंटेंस फॉर्मेशन है. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन. या जहां पर भी, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जहां पर भी विशफुल थिंकिंग है या रिग्रेट है, राइट, यू विल स्टार्ट योर सेंटेंस विद हैड. ओके, had this bungalow been mine, I would have decorated it beautifully. विशफुल थिंकिंग है, इमेजिन कर रही हूँ सिर्फ. आई एम ओनली इमेजिनिंग कि अगर ये बंगलो मेरा होता तो मैं इसको कितना सुंदर सजा देती. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी या तो यहाँ पे इन सब में क्या है? इट इज ऑल विशफुल थिंकिंग. जस्ट इग्नोर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज. इट इज ये है, ये ठीक है, वो टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी हाँ और जी अगर उसने मुझसे बात की होती तो सब ठीक हो जाता. हैड ही स्पोकन टू मी. इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, दिस, ही, शी, दैट, जो भी सब्जेक्ट है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म. स्पोकन, स्पीक वर्ब है ना यहाँ पे. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. हैड ही स्पोकन टू मी, we would have sorted out everything. ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेट होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन अभी के लिए जो आपने डाउट पूछा वो मैंने क्लियर कर दिया. ओके आपको बहुत सारे ग्रामर बुक्स में, ये जो नॉर्मल लोकल ऑथर्स का ग्रामर बुक्स होते हैं ना, उसमें आपको सब में ऐसे मिलेगा. सेंटेंस इफ से स्टार्ट करते हैं ये लोग. जैसे if he had spoken to me, ऐसा बोलते हैं सेंटेंस को. we would have sorted out, लेकिन ये गलत है. you'll not say if he had spoken to me,
had he spoken to me, we would have sorted out. Okay. You getting what I'm saying? हाँ जी ये मैम. हम लोग लोकल ऑथर्स में जो बुक्स हैं ग्रामर में, वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश को हिंदी का जेरोक्स बना रहे हैं कि अगर उसने मुझसे बात की होती, तो अगर के लिए इफ लगा दिया, बट दैट्स नॉट द प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, नहीं है वो. हाँ ओके. ठीक है. हाँ जी. यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैम, क्लियर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये हमने सारा कर लिया. नेक्स्ट, और क्या यूज है विल का? टू गिव एन ऑफर टू समवन. इट इज यूज टू गिव एन ऑफर टू समवन. कैसे ऑफर देंगे? विल यू जॉइन अस फॉर अ मूवी टुनाइट? यू आर सिंपली ऑफरिंग दिस. Will you marry me? Will you join us for a movie tonight? Will you come with me for a walk? Simple offer कर रहे हो किसी को, मैं walk पे जा रही हूँ, आप चलोगे साथ में? Will you like to join my business? Same. These are very simple sentences. I think you can very well frame sentences with these. How to give an offer to someone by using will? Good. जब भी किसी को बहुत पोलाइटली आपको कोई बात करना है, बहुत पोलाइटली कुछ बोलना है, तो आप would यूज करेंगे. मुझसे पूछना है, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? हम ये वुड यू माइंड क्यों लगाते हैं? वुड यू माइंड का क्या मतलब? आप कहीं पे बैठे हैं, कहीं हॉल में गए या कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस में है, आपको कहीं बैठना है, सामने वाले को बोलना है आप थोड़ा सा प्लीज शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट. तो ये वुड यू माइंड का क्या मतलब होता है? आपको बुरा ना लगे. वो तो है, बट इट्स जस्ट अ फ्रेज. लाइक यू आर मेकिंग अ वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. इट्स बेसिकली अ शॉर्ट वे टू से, लाइक अगर आपको दिक्कत ना हो, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इफ इट इज नॉट इनकन्वीनियंट, वुड यू प्लीज डू दैट. ओके. और ठीक. अगर मैम बिना उसके भी लिख सकते हैं ना, लाइक विच यू लेंडिंग मी सम मनी, माइंड को नहीं लगाएं तो. वो पता है क्या है, उसमें थोड़ा सा वो पोलाइटनेस फैक्टर मिसिंग हो गया. ओह अच्छा. ठीक है, ये वुड यू माइंड लगाया ही इसीलिए, इस फ्रेज का काम ही यही है, दैट इंडिकेट्स पोलाइट रिक्वेस्ट. इट इंडिकेट्स दैट यू आर टॉकिंग वेरी वेरी पोलाइटली एंड यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कन्वे, इफ इट इज नॉट सो इनकन्वीनियंट फॉर यू, वुड यू प्लीज डू दैट. ओके. कभी भी कोई टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे हैं, होता है ना, किसी पार्टी में गए या किसी दोस्तों के घर गए, आपको कुछ चाहिए, हमें वो हम बोलते हैं बाउल पकड़ा देंगे प्लीज, वो स्पून पास कर देंगे प्लीज, नमक दे देंगे प्लीज. सो वुड यू माइंड पासिंग विद द सॉल्ट? ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि आपको उसको रट लेना है, कि कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट करना तो वुड यू माइंड वुड यू माइंड वुड यू माइंड लगा रहे हैं. नॉट लाइक दैट. इसमें देखिए, वुड इट बी ओके इफ आई कम अ लिटिल लेट टुमारो मॉर्निंग? ओके. इसमें भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हो ना. हाँ जी. वुड यू प्लीज बी क्वाइट? अब जरूरी नहीं है कि मैंने हमेशा ऐसे बोला, वो जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस में आएगा बोलना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे लगाना है वुड यू माइंड, कहाँ पे नहीं लगाना है. ओके मैम. राइट. हाँ जी. क्या है? things we often do or things we are willing to do but only in the present time. वहां पर भी हम will use करते हैं. things we often do or things we are willing to do in the present time. ठीक है. टिपिकल बिहेवियर की बात होती है इसमें, जब भी हम विल यूज करते हैं, वी टॉक अबाउट टिपिकल बिहेवियर और थिंग्स दैट वी ऑफन डू. क्यों? क्योंकि हम वो करना चाहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बोला, वी ऑलवेज स्पेंड आवर हॉलीडेज एट अ फेवरेट होटल एट द सी साइड. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी देखिए, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि हम ऐसा करेंगे, विल गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो अक्रॉस द रोड टू द बीच. ये मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ. बी वेरी केयरफुल हियर. अगर मैंने बोला वी विल गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर सुबह हम जल्दी उठेंगे. मैं यहाँ पे अपने प्रेजेंट बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि हम जनरली क्या करते हैं. ओके.
We always spend our holidays at our favorite hotel at the seaside. हमें अच्छा लगता है, हम लोग जल्दी उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बीच पर जाते हैं. हाँ, ठीक है. मतलब अब वो जब भी वहां पे जाते हैं वो ऐसा करते हैं। हाँ 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 हाँ. हम्म, I'll just have a look at the hotel and come back. ये क्या है, होता है ना, आप किसी फ्रेंड के साथ हो, आप बोलते हो I'll quickly go and come back. बोला होगा हम्म, आपने बहुत बार. मैं हम्म, फटाफट अंदर जाके अपनी बुक लेके आती हूँ. जी। तो ये क्या है, इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस एक्शन है कि अब भी आपने एकदम से किया और एकदम से करके वापस आ गए. ओके। आप इसको ऐसा देखिए, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ कोई होटल्स सर्च कर रहे हैं, ठीक है. बाहर से आपने कुछ देखा, आपकी फ्रेंड बोलती है नहीं ठीक नहीं लग रहा, छोड़ इसको. आप बोलते चल तो 1 मिनट रुक, मैं देख के आती हूँ फटाफट. जी जी। I'll just have a look at the hotel and come back. She said I'll just come in a moment. मैं एक, अब इसका मतलब ये नहीं है मैं एक एक मोमेंट में आऊंगी, ऐसा हिंदी नहीं है इसका. बस मैं हम्म, अभी गई और अभी आई, मतलब ये है बोलने का. ओके। इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस एक्शंस. तो यहाँ पे ये जो भी यूजेस हैं थोड़ा सा हटके हैं, बिकॉज हमें आदत क्या है, हम समझते हैं विल लग गया तो मतलब वो फ्यूचर ही है हमेशा, बट नॉट ऑलवेज. This is a particular case where you are using will to talk about a typical behavior, और वो चीजें जो आप ज्यादातर करते हो क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है. एक तरह से अपना बिहेवियर, अपने हैबिट बता रहे हो आप, या फिर सबसे ज्यादा यूज होता है इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस एक्शंस को बताने में. ओके। ठीक है. आपने बोला कि मैम अभी क्लास ले सकते हो क्या, मैं फ्री हूँ. अभी मेरा कोई प्लान नहीं था क्लास लेने का, तो मैं बोलती हूँ ओके जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई हैव माय ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी और स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके स्टार्ट करती हूँ. इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस एक्शंस. ओके। I'll quickly have my breakfast and then we'll start. ओके. और ओके। देखो कितने कितने सारे इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस एक्शंस हो सकते हैं. एक मैंने आपको बताया, कहीं पे आप जा रहे हो, आपको 2 मिनट कहीं पे रुकना है, मे बी यू हैव टू गो टू वॉशरूम लेट्स से. तो यू से कुड यू प्लीज स्टॉप द कार हियर, आई क्विकली गो टू वॉशरूम एंड कम बैक. आप ऐसा नहीं बोलते हो आई एम गोइंग टू वॉशरूम एंड कमिंग बैक, यू डोंट से दैट. जी। इज इट वेरी क्लियर? हाँ जी। गुड. जो हम अभी इसमें क्या है, हमने टिपिकल विल में क्या था, हमने टिपिकल बिहेवियर की बात करी, लेकिन प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में हमें चीजें करना अच्छा लगता है और जो हम करते हैं. वुड में क्या है, जो हम पास्ट में किया करते थे. जी। अगर आप ये पढ़ते हो ना, जो ये लोकल पर्टिकुलर सिटीज के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, दिल्ली टाइम्स आता है या बैंगलोर टाइम्स आता है, कभी उठा के पढ़े हैं वो पेपर्स. उसमें सेलिब्रिटीज के जो वो अपने बारे में बताते हैं ना, हम ऐसे किया करते थे, हम ऐसा करते थे, हम ऐसे होते थे, उन सभी सेंटेंसेस में वुड लगता है, कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो. जैसे यूज टू की जगह वुड लगा देना। हाँ, यूज टू की जगह वुड, एग्जैक्टली. हम्म, टिपिकल बिहेवियर और थिंग्स दैट वी ऑफन डिड बिकॉज हम उनको, हमें वो करना अच्छी लगती थी या हम उनको करना चाहते थे. हम्म, You getting what I'm saying? हाँ जी। What people wanted to do or what they were willing to do in the past. अब देखिए, when they were children they used to spend their holidays with their grandmother at the seaside. यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने used to लगाया कि वो ऐसा करते थे. आगे जब मैंने उनका रूटीन बताया, उनका बिहेवियर बताया या उनके हैबिट्स बताए, तो मैंने क्या किया, वो सुबह सुबह जल्दी उठते थे, फटाफट ब्रेकफास्ट करते थे और बीच पर भाग जाते थे. हम्म, हाँ You जी। getting what I'm saying? हाँ जी। So, when they were children, they used to spend their holidays with their grandmother at the seaside. I'm sorry. They would get up early every morning and have a quick breakfast. Then they would run across the road to the beach. हम्म, You ओके। getting what I'm difference समझ में आ रहा है? हाँ Present जी। behavior की बात कर रहे हैं तो will, past के habits की बात कर रहे हैं तो used to की जगह आपने would से replace किया है उसको. ओके। Dad would not lend me the car, so we had to take the train.
समझ में आ रहा है आपको? Dad won't lend me the car. वो Okay. मुझे कार नहीं देते, ये मुझे पास्ट में पता है कि वो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए हमको ट्रेन लेनी पड़ी। Okay. ओके, हाँ नेक्स्ट। जी। अब देखिए, आप जब किसी चीज को करने की कोई इच्छा जाहिर करते हो लेकिन वो भी शो कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कॉजेज, इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। क्या मतलब हुआ? आई वुड हैव विजिटेड यू बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस। ये क्या हो गया? थर्ड कंडीशनल। ये मैं आपको सारे बाद में क्लास लेके सारा समझाऊंगी। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एक्चुअली होते क्या है। ओके। मैं तुम्हारे पास आ जाती बट तुम्हारा एड्रेस भूल गई थी। ओह। मैं आना मतलब डिजायर क्या है? डिजायर है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, दैट इज माई डिजायर, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉजेज, आई फॉरगॉट योर एड्रेस। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। हम्म। अभी देखिए, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, हैड यू डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद मी। अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बोलेंगे इफ यू हैड डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद मी। आपको मैक्सिमम, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैक्सिमम जो लोकल ग्रामर बुक्स होते हैं ना, सिंपल कोई भी उठा लिया, लोगों को आदत होता है कुछ भी, कोई भी ग्रामर बुक उठा के पढ़ने लग गए, तो उसमें ये सेंटेंसेस दिए होते हैं, इफ यू हैड डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद मी, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, आप ये एक तरह से इमेजिन कर रहे हो, ये तो हो चुका ना, प्रॉब्लम तो आ चुकी, उसका प्रॉब्लम बढ़ चुका या जो भी है, उसने डिस्कस नहीं किया आपसे। तो हैड यू डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद मी, आई वुड हैव सॉर्टेड इट आउट। मैं उसको सॉर्ट आउट कर देती। जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक डाउट पूछते हैं कि मैम ये समझ नहीं आता, वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव ये कब लगाना है? मोडाल्स पढ़ रहे हैं हम अभी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विल वुड, कुड और शुड की मैंने अभी आपसे बात नहीं करी, ब्रीफ में बता रही हूँ। वुड हैव आपने लगाया तो यू आर काइंड ऑफ श्योर कि आप उसको सॉर्ट आउट कर देते हो, उसकी प्रॉब्लम को, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो। कुड हैव अगर आप लगाते हो तो दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना बन जाती है कि अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस की होती तो मैं उसको सॉल्व कर सकती थी या करने का ट्राई कर सकती थी। तो उस केस में मैं क्या लगाऊंगी? आई कुड हैव सॉर्टेड इट आउट। ओके। शुड का मतलब तो हो गया चाहिए था, हाँ जी। कि वो तुम्हारे पास आई थी, तुम्हें उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, यू शुड हैव सॉर्टेड इट आउट। जी। She had come to you for English classes, you should have helped her. You getting what I'm saying? तो जी जी। would, अभी के लिए इतना जान लीजिए, would have लगाया है तो you are kind of confident, could have है तो there's a possibility, एक संभावना है, एक चांस है वो चीज होने का, and should have is you are just giving an advice कि आपको ऐसा करना चाहिए था। ओके। Okay? हाँ जी। Had you come early today, we would have had dinner together. अगर तुम आज जल्दी आए होते तो हम साथ में डिनर करते। ओके। क्या क्या डिजायर एक्सप्रेस हो रहा है? साथ में डिनर करने का। एक्सटर्नल जी। कॉज जिसने इसको इम्पॉसिबल बनाया वो क्या है? वो घर जल्दी आया ही नहीं। या। जी। और देख लीजिए, टू एक्सप्रेस, यहाँ पे मैं आपको जितना बता रही हूँ ना नया, ये आपको प्रोबेबली किसी ग्रामर बुक में इतने सारे यूजेस और वो सब नहीं मिलेंगे। आप इसको ऐसे ऐसा समझ लीजिए कि जितने पॉसिबल यूज हैं विल और वुड के, वो मैंने सारा यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया आपके लिए। ओके। इसके हटके आपको कोई ग्रामर बुक में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, कहीं दिमाग लगाना नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल, कोई ये कोई वो, जो है विल और वुड का बस यही है। इतना दिमाग में बिठा लेंगे तो ना राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा ना स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगा। ओके मैम। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस गोइंग टू, जैसे मैं ये करने जा रही हूँ, ठीक है, उस केस में भी वुड लगाते हैं। गोइंग टू एक कॉमन एक्सप्रेशन है ना, जैसे समझिए, why didn't you bring your umbrella, I told you it would rain, मतलब it is going to rain, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ओके। तो going to को मैंने would से रिप्लेस किया है। मैं हिंदी में क्या बोल रही हूँ, तुम अपनी अम्ब्रेला क्यों नहीं लेके आए? मैंने कहा था बारिश होएगी या बारिश होने वाली है, कुछ भी। तो इसमें भी हम वर्ड लगाते हैं, ये बोलने के कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। प्रोबेबली राइटिंग में उतना यूज नहीं होगा पर स्पीकिंग में बहुत यूज होता है।
Even as a boy, he knew he would succeed in life. जब से वो बच्चा था तब से उसको पता था कि वो लाइफ में कामयाब होगा. तो he is going to succeed in life. I knew this would happen. बोलते हैं ना, मेरे को पता जी था ये होगा. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम यहाँ पे would क्यों लगाया, will क्यों नहीं लगाया? आप समझ में आया will क्यों नहीं लगाया? जी जी, गोइंग टू की वजह से. इसलिए नहीं लगाया because I am replacing going to with would. That's a rule. You replace going to with would. You don't replace going to with will. जी You getting what I'm saying, Naya? हाँ जी. I knew he would not listen to me. I knew this would happen. I knew he would be affected by his family's decision. जी जी. Right? हाँ और जी. देख, किसी काम को करने का कोई विलिंगनेस आपको एक्सप्रेस करना है या कोई मना करना है या कोई प्रपोजल देना है किसी को. To express willingness, to express refusal or to give a proposal, ये सब बहुत छोटे छोटे से uses हैं तो मैंने सब एक में कर दिया. I did not want to make so many points. I would like to have a cup of hot coffee. Willingness. जी. I would like to listen to your entire story. Willingness. I would like to join you for a movie tonight. ऑफर जब हमने दिया था तो क्या पूछा था, विल लगाया था, विल यू जी. जॉइन फॉर अ मूवी, यही बोला था. हाँ जी. अगर आप अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, वुड. आई वुड लाइक टू प्ले चेस विद यू. विलिंगनेस अगेन. बनाइए और सेंटेंस बनाइए अपने आप से. ट्राई वन मोर सेंटेंस. I would like to learn. I would like to. I would like to learn how to speak fluently in English. यही बोलना चाह रहे थे. हाँ जी. हाँ जी. I would like to express my thoughts to him. ठीक है. I would like to. I would like to cooking. ऐसा बोल सकते हैं. I would like to learn cooking or I would like to cook. I would like to cooking नहीं. Oh, okay. I would like to cook or I would like to learn cooking or I would like to involve myself in cooking. Okay. ठीक है. अब refusal. कितना भी दर्द हो पर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है या नहीं गया. He wouldn't go to the doctor even though he was in pain. वो जाएगा ही नहीं, मतलब उसका हैबिट है ये, डॉक्टर को दिखाएगा ही नहीं चाहे कितना भी पेन हो. He would not dive into this river for any amount of money. कितना भी उसको पैसा दे दो वो इस रिवर में डाइव नहीं करेगा. Refusal. I would not give up no matter what happens. कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगी. Would you please come inside my house? Proposal. Would you like to have steak or chicken? Proposal again. Okay. Would you like to stay with me tonight? Proposal again. Okay. समझ में आ रहा है? So I hope you are very very clear with all the uses of will and would. हाँ जी. Very clear. All the possible uses I have expressed here. Now we'll do one thing. We'll practice all that we have learned. Okay? Okay. Okay. Just a second.